ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन कृष्णा सागर राव ने दुबाग पुलिस के रवैये पर बरहमी जाहिर करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक अमल करना चाहिए। ఎంపీ బండి సంజయ్ గారి అరెస్టును భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తామని, నిన్న వారిని అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా వారిపైన బలప్రయోగం చేయడం, వారిని నెట్టేయడం, నూకేయడం, వారిని వ్యాన్లో తోసేయడం, ఇట్లాంటి బలప్రయోగాలు పోలీసులు చేయకుండా ఉండాల్సింది. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తాము. అది అవసరం లేని విషయం, అన్వారంటెడ్ విషయం. అదేగాక వారేమి పోలీస్ అరెస్ట్ని రెసిస్ట్ చేయలేదు. వారిని నిజంగా అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తే గౌరవంగా చేయొచ్చు అరెస్ట్. వారేమి ఇల్లీగల్ ప్రొటెస్టులు చేయలేదు, వారేమి పోలీసుల మీద బలప్రయోగం చేయలేదు. మరి వారి మీద ఫిజికల్గా అటాక్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని మేము అడుగుతాం. ఈ దుశ్చర్యని తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. పోలీసులు ఈరోజు ఈ సెక్షన్ అమల్లో ఉన్నందుకు, ఎలక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అమల్లో ఉన్నందుకు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వారి గైడ్ లైన్స్లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తమకు తాముగా పనిచేయడం, లేకపోతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల మెప్పు కోసం పనిచేయడం, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కోసం పనిచేయడం, ఇవన్నీ పోలీసులు మానుకోవాలి. ఇది డిపార్ట్మెంట్కి చెడ్డ పేరు తేవడమే కాకుండా ఒక సెంబ్లెన్స్ తోని ఒక ఈక్వల్ ఫుటింగ్లో ఫేర్ అండ్ ఫ్రీగా జరగాల్సిన ఎన్నికలకు आघातों विघातों కలిగిస్తుందని మేము గట్టిగా భావిస్తాం। सिद्दीपेट में पुलिस की जानिब से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट व रियासती सदर बंडी संजय को गिरफ्तार किए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए आज आदिलाबाद जदीद बस स्टैंड के रूबरू ज़िला सदर बीजेपी पी शंकर की क़ियादत में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने चीफ मिनिस्टर KCR के अलामती पुतले को नज़र आतिश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मदाखलत करते हुए बीजेपी कारकुनों को मुंतशिर करने की भरपूर कोशिश की। ताहम बीजेपी के क़ायदीन वज़ीर आला की फ्लेक्सी को जलाने में कामयाब रहे। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान ज़बरदस्त धक्कम पहल भी देखी गई। सिद्दीपेट पुलिस की जानिब से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट व रियासती सदर बंडी संजय को गिरफ्तार किए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए आज ज़िला निर्मल के भैंसा शहर में बीजेपी क़ायदीन कारकुनान की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। ఒక ఎంపీ కూడా చూడకుండా, రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా చూడకుండా ఈడ్చుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇన్నోవాలో మీడను వంచి లోపల తోసేయడం చాలా సిగ్గుచేటు. కొద్దిగన్నా సిగ్గుంటే ఒక ప్రోటోకాల్ ప్రకారము రాష్ట్ర అధ్యక్షునికి ఇచ్చే గౌరవం కూడా లేకుండా పోలీసులను ఉపయోగించుకుంటున్న మంత్రి హరీష్ రావు మీ పతనం మొదలైంది. ఏదైతే భారతదేశంలోనే అతి పవిత్రమైన ఈ తెలంగాణలో ముద్దు బిడ్డ మన బండి సంజయ్ అన్న గారు ప్రతి ఒక్క యువకుల గుండెల్లో ఉన్నారు. మీరు ఒక్కటే ఆలోచించండి, హరీష్ రావు గారు, మీరు మన రఘునందన్ అన్న గారి ఇంట్లో డబ్బులు దాచిపెట్టి మీరే దొంగతనాలుగా దొంగలుగా మీరు వచ్చి మిమ్మల్ని మా కార్యకర్తలు పట్టుకుంటే మా పైన వేస్తారా? ఇలాంటి అబండరాలు వేయడానికి ముందంజలో ఉన్న మీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహిస్తున్నారు। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर जोएल डेविस ने बीजेपी के लीडरों की जानिब से उन पर आयद इल्ज़ामात को झूठ करार दिया। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए सिद्दीपेट ज़िले में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। सिद्दीपेट ज़िले के दुब्बाग असम्बली हलक़े में बीजेपी के उम्मीदवार के रिश्तेदार के मकान पर छापा मारते हुए पुलिस ने 18,67,000 रुपये की रकम जब्त की थी। ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఆల్ టీమ్స్, కలెక్టర్ గారు కానీ, నేను కానీ, అదర్ మా కింద పనిచేసే టీమ్స్ కానీ
మా ఈ ప్రాసెస్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్ వారు ఉన్నారు, ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్ వారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ సమక్షంలో ఏమేమి జరిగింది అన్నది మేము అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ పంపిస్తూ ఉన్నాము. ఆ టైంలో ఇట్లా ప్రజల్లో ఒక నమ్మకంని పోగొట్టుకునే విధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని ప్లాంట్ చేశారని చెప్పినది మాత్రం ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రబిష్. సో నా కోరిక ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్లు ప్రజలకు ఆ నమ్మకం రావాలంటే మీరు ఈ వాస్తవాలు ప్రజలకు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने दुबाक ज़िमनी इंतख़ाबात को लेकर सिद्दीपेट पुलिस पर लगाए गए इल्ज़ामात पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। हरीश राव ने मंगल के रोज़ कहा कि बीजेपी को मुसलसल तीसरी बार अपने उम्मीदवार का डिपॉजिट खोने का डर है, इसीलिए बीजेपी मायूस है और वोटर्स की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब करने के लिए हर तरह के खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने उनकी और टीआरएस के उम्मीदवार की गाड़ी की भी तलाशी ले चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस मरतबा दुब्बाक से टीआरएस उम्मीदवार एस सुजाता की कामयाबी यकीनी है। ఈరోజు పోలీసులు రైడ్ చేసినారు, మేము అక్కడ సహకరించినాం. మా మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజనర్స్ గారు సిద్దిపేట చైర్మన్ గారి మీద మరి ఎవరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన ఇంట్లో లేనప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో మహిళలు మాత్రమే ఉన్న సమయంలో కూడా అక్కడ కూడా పోలీసులు రైడ్ చేసి ఇల్లు పూర్తిగా కూడా చెక్ చేస్తే కూడా మేము ఇక్కడ మా రాజనర్స్ గారి కుటుంబ సభ్యులు పూర్తిగా సహకరించి దాదాపు గంటన్నర సేపు వాళ్ళు సహకరించినటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈరోజు మీరు చూస్తే 2 చోట్ల బీజేపీ అభ్యర్థి కుటుంబ సభ్యుల మీద రైడ్ అయింది, 2 చోట్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల ఇళ్లపైన కూడా రైడ్ అయింది. అందులో ఒకరు నాకు ప్రధానమైనటువంటి అనుచరుడు సిద్దిపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ ప్రథమ పౌరుడి ఇంటి మీద కూడా రైడ్ అయింది. ఈ చేగుంట మండలం ఇబ్రాహీంపూర్లో నారాయణ రెడ్డి గారి ఇంటి మీద రైడ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను వస్తుంటే కూడా భూంపల్లి ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర మా ఎంపీ గారి కారు, నా కారు కూడా చెక్ చేసినారు. మొన్న కూడా తొగట మండలంలో నా కారు చెక్ చేసినారు. మా అభ్యర్థి సుజాత గారి కారు కూడా చెక్ చేసినారు. సో ఎన్నికల్లో సమయంలో అధికారులు, పోలీసులు తమ యొక్క విధి నిర్వహణ వారు చేస్తారు. అభ్యర్థులుగా, బాధ్యతాయుతమైన రాజకీయ పార్టీలుగా, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ప్రజా ప్రతినిధులుగా, రాజకీయ నాయకులుగా పోలీసులకు, అధికారులకు సహకరించాల్సి ఉంటుంది. हैदराबाद के बारिश और सैलाब मुतासरीन जिनके सर्टिफिकेट्स या दस्तावेज़ात बह गए हैं, उनको अपनी ही नोयत की एक और राहत देते हुए MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद में बारिश व सैलाब के दौरान जिन अफराद के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स गुम गए या फिर बेकार हो गए, ऐसे अफराद के लिए MIM की जानिब से एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अंजाम दिया। यह हेल्प डेस्क ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाबानगर ब्रांच में कायम किया गया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अभी भी मिला कि ज़ेर सरपरस्त हिदायत पर हेल्प डेस्क का क़याम अमल में आया है। जो घर मुतासिर हुए हैं और जिनके सर्टिफिकेट्स बह गए हैं, उसमें SSC के सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरमीडिएट के, डिग्री के, उनके लिए ये हेल्प डेस्क कायम किया गया है। और वो असहाब से, उन तुलबा से, मुतासरा घरों से, उनके सरपरस्तों से गुजारिश की जाती है कि वो हाफिज़ बाबानगर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर आए दरख्वास्त के साथ, और साथ में आधार कार्ड वगैरह का अगर जिरात से तो लेके आए, डिपार्टमेंट वाइज SSC, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और डिग्री के तमाम महकमों से रब्त कायम किया जाएगा। और इसके लिए आला अहदेदारों से आपकी हिदायत पर, हबीब मुल्ला साहब की हिदायत पर एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम से मुलाकात किया जाएगा और फर्दर इस ऑर्डर्स को निकालने के लिए किस तरह से आसानियाँ जो हैं इस सर्टिफिकेट्स को वसूल के लिए, उसके लिए भरपूर नुमाइंदगी मजलिस टीचर्स से और FIR की अगर जरूरत पड़ी तो FIR को भी निकालने के लिए पूरा मजलिस का ताउन रहेगा। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा डिवीज़न जहांगीर नगर में बारिश से मुतासरा आवाम से मुलाकात की और उन्होंने घर घर जाकर हुकूमत की जानिब से दी जा रही 10,000 रुपये की इमदाद उनके हवाले की। इस मौके पर याकुतपुरा मजलिसी इंचार्ज व यूथ आइकॉन यासर अरफात,
नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा मुकामी सुदूर व दीगर अरकान और मुताल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने निज़ाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, बालरेड्डी नगर, विरासत नगर, रेती गली, रेशम बाग और दीगर इलाकों में बारिश से मुतासरा घरानों में हुकूमत की जानिब से दी जा रही 10,000 रुपये की इमदाद तकसीम की। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स और ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC की जानिब से किए जा रहे साफ सफाई के कामों का मुआयना भी किया। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला आन जहानी नायनी नरसिम्हा रेड्डी की बीवी अहल्या का देहांत हो गया है। उन्होंने 66 बरस की उम्र में आखिरी सांस ली। वो फेफड़ों के इन्फेक्शन से अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी और पीर की रात दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ हो गई। वाज़ेह हो कि 22 अक्टूबर को नायनी नरसिम्हा रेड्डी का भी दौरान इलाज देहांत हो गया था। अंदरून 4 दिन ही उनकी बीवी के देहांत पर वज़ीर आला KCR और दीगर क़ायदीन ने अफसोस का इजहार किया है। रियासती वज़रा KTR, तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली और दीगर पार्टी क़ायदीन ने उनके घर पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। ज़हीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल की सेहतियाबी के लिए दरगाह हज़रत शेख शहाबुद्दीन शहीद में खुसूसी दुआ की गई। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल बीबी पाटिल ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए खबर दी थी कि वह कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं और जो भी लोग उनसे राब्ते में आए थे उन्होंने उनसे ख्वाहिश की थी कि वो लोग भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। दरगाह शरीफ में आज सैयद अफसर पाशा कादरी ने उनकी सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर TRS मंडल सदर G रामुलू और शेख फरीद रुकन रेलवे बोर्ड के अलावा TRS के दीगर क़ायदीन कारकुनान मौजूद थे। JMR की ज़ेर क़यादत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मंगल को दावा किया है कि ये मुल्क का वाहिद एयरपोर्ट है जिसने तमाम फ़्लाइट्स के अंदरून मुल्क मुसाफिरीन के लिए कागज़ से पाक बोर्डिंग की पेशकश की है। आत्मनिर्भर भारत के हकीकी जज्बे के तहत GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने देसी साख्ता तैयार करदा डिजिटल सॉल्यूशन का आगाज़ किया है और भारत में ऐसा करने वाला वो पहला एयरपोर्ट बन गया है। पुलिस कमेमोरेशन वीक की तकरीबात के हिस्से के तहत आदिलाबाद में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद आज पुलिस हेडक्वार्टर्स में अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल SP श्रीनिवास और विनोद कुमार ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन और रेड क्रॉस सोसाइटी और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने अपने खून का अतिया किया। भैंसा गवर्नमेंट हाई स्कूल में चोरी की वारदात पेश आई है। बताया गया है कि स्कूल इंतज़ामिया को दशहरे के छुट्टियां मिलने पर स्कूल बंद था। इसी का मौका उठाते हुए नामालूम अफराद ने इस चोरी को अंजाम दिया। स्कूल इंचार्ज हेडमास्टर नागेश्वर राव ने बताया कि तकरीबन 1 लाख रुपए मालियती अशिया का सरखा कर लिया गया है। इस मौके पर चेयरमैन शेख मुख्तार और दीगर असातिज़ा ने चोरी की वारदात पर सख्त बरहमी का इज़हार किया और कहा कि इससे पहले भी स्कूल में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, ताहम कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पुलिस और हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। तकरीबन 1 लाख तक तो 1 लाख का क्योंकि तो साइंस का लैब पूरा चले गए और बैंड चले गए। मेन बोर 1.5 HP मोटर बोर मोटर नया थे, हम लोगों को मैडम दिए। एक इससे पहले गए तो कोई गिफ्ट दिए कहते, वो मेरा पास थे, उसमें वो कंप्यूटर रूम में से वो भी चले गए। लिए जाके हम SI के पास दोनों चेयरमैन मैं गए तो चेयरमैन क्या बोले, वॉचमैन रख लो बोले, वॉचमैन और वॉचमैन रखने का हमारे हाथ में नहीं रहता बोले तो क्या बोले, एक टीचर यहाँ पे रहो बोले, एक टीचर को डिप्टेशन या वॉचमैन के वैसा रखो बोल के बोले। सर 3 पोस्ट है, तीनों खाली है सर, किसी को नहीं दे रहे सर। 3 खाली है सर, वॉचमैन भी खाली है, 2 अटेंडर पोस्ट भी खाली है। ओके सर। एक अकाउंट में डंप हो गए सो पैसे 60,000 तक है। एक रैंप के लिए है मगर वो रैंप पूरे पैसे नहीं आए। 26,000 के अलावा 19,500 है, वो भी मेरा पीरियड का नहीं, 18-19 का है। ओके पूरा मिला के जुमला 80,000, 83 बोले तो
83,000 तक है। रियासत कर्नाटक के ज़िले बीदर के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नीट इम्तिहान में शाहीन इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अब्दुल खदीर ने बताया कि मुल्क भर में मौजूद शाहीन के 42 सेंटर्स में इस साल नीट की कोचिंग के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस साल शाहीन के 400 तलबा को MBBS में फ्री सीट मिलने जा रही है। इस मौके पर नीट इम्तिहान में मुल्की सतह पर 9th और कर्नाटका स्टेट का फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले कार्तिक और दीगर तलबा की गुलपोशी करते हुए हौसला अफजाई भी की गई। वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स कोरोना से मुतासिर होकर जिनका इंतकाल हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री एडमिशन नीट के लिए हम बीदर में लिए हैं और इंडिया भर के बच्चों के लिए ये ऑफ़र कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हैदराबाद में ये बारिश की ज़्यादती की वजह से मुतासिर हजरात और वो उनके बच्चे अगर नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनकी खुशियों को कोई जो है नुकसान ना हो, बल्कि उनको मौका मिलना ही चाहिए। पैसा जो है रुकावट नहीं बनना चाहिए तरक्की में, तालीम के हासिल करने में। इसलिए हैदराबाद के ऐसे मुतासिर स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं और उनके नीट के मार्क्स ठीक हैं, तो उनको हम 100% स्कॉलरशिप तक देकर उनको मौका देना चाहते हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 30 अक्टूबर बाद नमाज जुमा हैदराबाद में निकाला जाएगा मरकजी मिलाद जुलूस। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया का बयान, कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए शिरकत करने की आवाम से की अपील। धारनी पोर्टल के जरिए मसाइल व परेशानियों से पाक रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रेवेन्यू के ओहदेदारों के ट्रेनिंग प्रोग्राम से किया खिताब। दुबाक में बाई इलेक्शन के दौरान बीजेपी का नोट फॉर वोट का मंसूबा बेनकाब। रेड के दौरान जब्त की गई रकम बीजेपी कारकुनों ने छीनी। पुलिस की इमेज को बदनाम करने की बंडी संजय की कोशिश नाकाम, किए गए गिरफ्तार। मेरे खिलाफ बीजेपी लीडरान के इल्जामात झूठे, सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर जोएल डेविस का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दुबाक हलके में बीजेपी का तीसरी बार होगा डिपॉजिट जब्त। वजीर खजाना हरीश राव का बयान, कहा वोटर्स की तवज्जो अपनी तरफ रागिब करने बीजेपी खेल रही है खेल। हैदराबाद के बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए MIM का हेल्प डेस्क। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। सर्टिफिकेट्स और दस्तावेजात की दोबारा हुसीली को बनाया जाएगा यकीनी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।